नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। खबर पंजाब से है, जहां नेशनल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के नेशनल प्रधान किशोर राजपूत से हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता प्रभाकर ने जब कैमरे के सामने बात की तो प्रधान किशोर राजपूत ने कहा कि पाकिस्तान एक नंबर का झूठा है। प्रधान किशोर राजपूत ने यह भी कहा कि भारत के साथ सारी पार्टियों का साथ है, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो वहां के मौलवी भी साथ नहीं दे रहे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले चीन भी पाकिस्तान का साथ देने का दावा कर रहा था, लेकिन अब चीन भी पीछे हट गया। पाकिस्तान के पास तो खाने को आटा भी नहीं है, लेकिन वह बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। अब पाकिस्तान दुनिया भर की कंट्री से मदद की मांग कर रहा है, लेकिन दुनिया की कोई भी कंट्री पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही। सबको पता है कि अगर पाकिस्तान की मदद की तो वह मानवता के लिए नुकसानदायक है। सबको पता है कि पाकिस्तान एक दोगला देश है। ਭਾਰਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਸ਼ੀਆ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਭਾਰਤ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਉਦੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਪਾ ਜਾਂ ਜੰਗ ਕੁਛ ਅਪਰੋਕਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰਿੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਆ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਗਰਵਾਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਆਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਘਣੀਵਾਦੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਜੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਵਾ ਵੀ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ है, वो बड़ी पुरानी गल हो गई। घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के तबाह कर देंगे ना। अब घर में घुस के बैठ जाओ। हम अब घर में घुस के मारने का, तबाह करने का नहीं है। मैं मोदी जी को आग्रह करना चाहता हूँ, अब घर में घुस कर बैठ जाओ। घर में घुस के बैठेंगे हम, ये पाकिस्तान को दिखाएंगे। और जो आपका क्वेश्चन पहले पुट ऑफ किया वो ये है कि श्रीनगर और कश्मीर में गोलाबारी क्यों नहीं रही है, जम्मू कश्मीर को ही पाकिस्तान सेना टारगेट क्यों कर रही है? तो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो ये है कि कश्मीर में, श्रीनगर में टोटली कम्युनिटी जो मुस्लिम की है, 1990 का इतिहास सभी लोग जानते हैं। कुल हिंदू पंडित, कुल हिंदू लोग, सिख लोग छोड़ के आ गए थे। अब वहाँ पर 99% मुसलमानों की आबादी है। और जिन लोगों ने धर्म पूछ कर मारा है वो लोग कोई और नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी के खुफिया लोग हैं। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आतंकवाद जो है वो निजी नहीं है, सेना द्वारा एक प्रायोजित भारत के खिलाफ षड्यंत्र है। सो इसलिए वो मुस्लिम बहुलाके होने के कारण मुस्लिम मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नेशनल कांग्रेस के पार्टी के जो अध्यक्ष है फारूक अब्दुल्ला, जितनी भी लीडरशिप है सारी मुस्लिम है। इसलिए उन्होंने जम्मू
को टारगेट किया है। वहाँ पर 65-70% आबादी हिंदुओं की है। और अभी भी वो जितने घरों में हमला हुआ है, जितनों घरों में पाकिस्तान सेना ने बम फेंके हैं, वहाँ पर हिंदू लोगों की ही जान चली गई है, हिंदू लोगों का अरबों खरबों का नुकसान हो गया है। प्रधान जी, एक बात और बताइए, जैसे कि पाकिस्तान बार बार इंडिया को बोलने धमकी दे रहा है कि हमारे पास ये बम है, वो है, या परमाणु बम है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या इंडिया के पास ऐसा कुछ नहीं है जो धमकी दे रहा है बार बार? अरे भाई, उसके पास जो परमाणु बम है तो हमने को खिलौने थोड़े रखे हैं सजाकर, हमारे पास भी है। एक बात आपको बता दूँ सीधी सी, एक हिंदी में कहावत है कि सांप की जब मौत आती है ना, वो चौराहे की तरफ भागता है, और गिदड़ की जब मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है। अब जो पाकिस्तान का जो रवैया है ना, वो ऐसा है, उनका रवैया है कि मुझे तो ऐसा लगता है, अभी तो हमारी सेना बहुत एहतियात के तौर पर काम कर रही है। मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त है, पाकिस्तान के पास मौका है कि जितने आतंकवादी ठिकाने उनको नष्ट कर दे, जितने आतंकवादी ट्रेनिंग स्कूल हैं उनको ख़त्म कर दे, जितने आतंकवादी पाकिस्तान में छिप कर बैठे हैं उनको जेलों में डाले या हिंदुस्तान के हवाले कर दो। हमारी कोई लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमारी किसी पाकिस्तान की किसी मुस्लिम भाई बहन बुजुर्ग के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी सिर्फ आतंकवाद के ख़िलाफ़ है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। हमारा किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। अगर ये 2-3 बातें पाकिस्तान मान लेता तो ठीक है, नहीं मानेगा तो फिर तो देखा जाएगा जो होगा। मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि पहले चीन भी पाकिस्तान के साथ संपर्क तक दे रहा था, अब वो चीन पीछे हट गया, इसका क्या कारण है? इसका कारण है, देखो, जब 1971 की जंग हुई थी, जब देश के पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, तब जो बड़े मुल्क हैं ना, बड़े मुल्क हैं जो बड़े देश जो हैं, वो उनका कोई करीबी देश जितना मर्जी प्यारा हो, जितना मर्जी नज़दीकी हो, वो नहीं चाहते कि कोई भी देश हमारे बराबर खड़ा हो जाए, वो नहीं चाहते हैं। इसलिए जब 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े, तभी चाइना ने बहुत ही उसको सपोर्ट नहीं की थी। अब भी जब बड़ी बड़ी शक्तियाँ, बड़े बड़े जो मुस्लिम देश है हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, बड़े बड़े मुल्क हिंदुस्तान के खड़े हैं, तो कोई बात देख के खड़े हैं। हिंदुस्तान में तो टेररिज्म है ही नहीं, हिंदुस्तान में तो आतंकवाद है ही नहीं। और जहाँ भी देखो आतंकवाद कुछ धर्म के लोगों द्वारा फैलाया गया है, एक षड्यंत्र है, वो मानवता के दुश्मन हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि इस समय जो ये कंडीशन चली है, पाकिस्तान और भारत का युद्ध है, तो भारत के साथ कौन कौन सी पार्टियां साथ दे रही हैं? ऐसा है, 2 बार, जहाँ तो मुझे ख्याल है 2 या 3 बार मोदी जी सर्वदलीय पक्षों की बैठक कर चुके हैं, सभी ने पूरा समर्थन दिया है। अब मैं ये नहीं जानता कि उनका समर्थन अंदर से है या बाहर से है, पर उन्होंने एक बार तो ऐलान कर दिया है कि हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। परंतु कुछ नेता अभी भी बड़ी पुरानी कब्रें खोद रहे हैं। मैं उनको सुझाव देना चाहता हूँ कि सेना पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करके सेना को, मनोबल को कभी भी हमें नहीं गिराना चाहिए। उसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं दुश्मनों का हथियार बन जाता। कुछ नेता भी सर्जिकल स्ट्राइक का, दिल्ली का एक मुख्यमंत्री उसने सबूत मांगे, कईयों ने सबूत मांगे, भारत ने सबूत भी दिए, पर वो अभी भी बयान दे रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं है। अब भी कुछ लोग प्रोपागंडा कर रहे हैं कि नहीं, ये लड़ाई जड़ी जो है वो तो बीजेपी की देन है, ये सरकार का चलाया हुआ षड्यंत्र, सरकार लोगों के ध्यान बंटने के लिए तो लगा। कौन प्रधानमंत्री, कौन देश, कौन पार्टी ऐसा चाहती है कि हमारे नागरिक मारे जाएं, हमारा अरबों खरबों का नुकसान हो जाए? और मैं तो ये कहता हूँ, लड़ाई चाहे घर की हो, चाहे मोहल्ले की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे देश की हो, चाहे दुनिया की हो, लड़ाई का नाम ही, लड़ाई का मुंह ही काला है। मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि इंडिया को हर पार्टी समर्थक दे रही है, जैसे आपने बताया है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ये देखा जा रहा है वहाँ के जो मौलवी है वो भी उसके खिलाफ हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे कि मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, बड़े दिनों से जो पाकिस्तान के मौलाना हैं, मौलवी हैं, उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान सेना, पहले मैं एक बात आपको दूसरे तरीके से समझाऊँ, क्या है, जो वहाँ की सरकार है वो इंडिपेंडेंट नहीं है,
इंडिपेंडेंट नहीं, जैसे हमारी सरकार, हमारी भारत की सरकार है, लोकतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, खुद फैसले लेते, खुद करते हैं, इसमें सेना का कोई दखल नहीं है और ना ही होगा। सेना का कोई दखल नहीं है। परंतु पाकिस्तान की सेना के कब्जे में वहाँ की सरकार है और जो सेना के अधिकारी हैं उसके कठपुतलियों की तरह नचाते हैं। अब सुन लो, पाकिस्तान में पहले ही गृहयुद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। BLA नामक पार्टी जो है बलूचिस्तान, उन्होंने कल ही मैंने न्यूज़ चैनल में देखा कि पाकिस्तान का काफिला रिमोट बम्बों से उड़ा दिया। वो पाकिस्तान के बहुत विरुद्ध हैं। उनकी दलील क्या है? दलील ये है कि जो पाकिस्तान की सरकार का सेना पर नियंत्रण नहीं है। सेना जो है पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं, आम बाशिंदे हैं, उन पर जुल्म ढाती है, इसलिए वो बगावत के सुर पनप रहे। और PAO की जो जिस पर 1947 ने पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वो भारत का अभिन्न अंग है। अब इस बार जब जंग लगी या जंग चलती है तो PO की हमारा हो जाएगा, हमारी सेना उसको कब्जा करके हिंदुस्तान में मिलाएगी। वो जम्मू कश्मीर लेने की क्या बात कर रहे हैं? हम POK पर भी कब्जा करेंगे। और दूसरी जो उनकी बगावती पार्टी खड़ी हुई है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, वो अपना बांग्लादेश की तरह अपना अलग राज स्थापित करेगी, यानी कि पाकिस्तान के अब फिर से टुकड़े होने वाले हैं। प्रधान जी, मेरा लास्ट सवाल ये है कि जैसे कि पहले पाकिस्तान धमकी दे रहा था कि पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा, ये करेगा वो करेगा, दौड़ रहा था शेर की तरह, अब वो बिगी बिल्ली की तरह हर कंट्री से भीख मांग रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये तो कुछ लोग, कुछ देशों ने उन्हें शायद मेरा ख्याल ऐलान भी किया है, लेकिन भारत ने उसका UN में विरोध दर्ज कराया है कि अब जंग लगने पर इसको मदद न दी जाए। ये मदद देंगे तो सारी बेकार जाएगी। ये जंगी हथियार खरीदेगा जो मानवता के लिए घातक होंगे। इसलिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने इसका सख्त विरोध दर्ज कराया। और मैं भी विदेशी कंट्रियाँ जितनी भी है, जितने विदेश लोग हैं, उनसे मैं सरकारों से बेनती करूँगा कि पाकिस्तान को एक पैसे, ये तो पहले भूख से मर रहा है, आटे को तरसा रहा है, जंग कर रहा है, भारत के जंग की बात कर रहे, भारत से साथ करूंगा। वो तुम्हारे घर में तो यार आटा भी खाने के लिए नहीं है। अब सर्जिकल स्ट्राइक की तरह बॉर्डर स्ट्राइक भारत सरकार ने की है। या तो आपको हम सूखे मार देंगे या फिर ऐसा पानी छोड़ेंगे कि आधा पाकिस्तान पानी में डूब जाएगा। ये हमारे साथ प्रेसिडेंट किशोर राजपूत जी, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं। मेरे साथ कैमरामैन पवनदीप सिंह चिम्मा, कपूरथला। पंजाब से सी न्यूज़ संवाददाता विक्रांत की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।